This is the truth behind breakups. We all know what is going on with Smriti Mandana and Palash Muchal, but what we don't know is why it is happening. And this video is exactly for that. We will delve together into tarot card reading, we'll tap into the collective energy, runes reading करेंगे and एक नया divination tool लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो भी मैं discover करूंगी. So, बिना देरी करे हुए, let's begin today's video. So, this video is definitely not for everyone. So, if you have stumbled upon this video, it means that your soul has brought you here. So, I want you to take a deep breath in and out. Excuse me. And if you're ready to listen to this video, ready to delve into the deeper truths, write I consent. Comment down below and let's begin with today's reading. So, we'll go with the tarot card readings first. Recently, India has been shaken by a very emotional moment surrounding our beloved cricketer Smriti Mandana, someone who represents strength, grace, and consistency. What was supposed to be the happiest chapter, her marriage, turned into confusion, silence, and pain. This video is not about gossip. This video is not about judging anybody. This video is about the collective energy behind sudden heartbreaks, sudden revelations, and why universe कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों को दूर खींच देता है. This is about that. Whether you are Smriti Mandana और आप कोई ऐसा हो जो स्क्रीन के उस पार चुपचाप खुद को हील कर रहे हो, the energy of this reading will speak to you if you have consented. Because when one woman, एक ऐसी औरत who goes through such a public heartbreak, the collective feminine feels it. We'll start with the tarot card reading. We will read each card in the exact order which they have come to be. So the first card which turned up is the High Priestess. है ना? So it says that the truth was always there. हमेशा से था. Quietly बुला रहा था. Intuition बहुत बार whisper भी करता है. But someone was overriding ये intuition का whisper, उनका खुद का ही inner voice. High Priestess दिखाता है छुपे हुए emotions को, hidden डर को, एक ऐसा सच जो wait किया है for the right time to pop onto the life of the person concerned. ये कार्ड हमको बता रहा है that everything that came out because Spirit said now is the time, right? That was High Priestess. The next card which came up in this reading is Four of Swords. The exhaustion, the overwhelm, the silence. आप में से कोई ऐसा है जो कैरी कर रहे थे इमोशनल टायर्डनेस को बहुत देर से बिफोर पब्लिक सॉ दैट. That can be the case with Smriti. This card shows that the situation required एक sudden pause. ये लड़की जो लेट के fetal position में सोई हुई है, she required this pause. ओके एक फोर्स्ड रेस्ट नहीं लेने मांग रही थी लेकिन रेस्ट उसको लेना पड़ा. अ ब्रेक जो प्री प्लान्ड तो नहीं था बट एब्सोल्युटली नेसेसरी हो चुका था. रेस्ट लेना एब्सोल्युटली नेसेसरी हो चुका था. द थर्ड कार्ड विच केम अप इज द हेरोफैंट, राइट? So this is the institution of marriage which was under spiritual scrutiny. ठीक है? Something about a relationship का foundation, ये values या फिर the commitments
अलाइंड नहीं फील हो रहा है मुझे। हेरोफैंट बताता है बेटर अ हार्ट ब्रेक बिफोर मैरिज देन अ हार्ट ब्रेक मैरिज के अंदर, है ना। द थर्ड कार्ड विच केम इन दिस रीडिंग is the moon, which speaks of confusion, secrets, illusions. The moon reveal करता है that not everything was clear. कुछ feelings, कुछ intentions, कुछ डर clearly communicate नहीं हुआ था. It also symbolizes nazar, the collective gaze, the pressure, the jealousy, the envy, the काश मेरे साथ भी मेरे लाइफ में ये होता. Too many eyes, too many eyes can distort एक इंसान का खुद का अंदर का सच्चाई को भी. It is that powerful. But ये जो कार्ड है, this also says what was in the dark, पानी के अंदर, has to come to light. लाइट में उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो. The fifth card we have is judgment. Now ये कार्ड ही है रेवलेशन का, ठीक है. एक ऐसा सच्चाई जिसको छुपा के नहीं रखा जा सकता, नहीं रहेगा ये छुप के. एक कार्मिक वेकअप कॉल कार्ड है ये. जजमेंट बोलता है that something must be seen, needs to be seen, someone needs to be freed. जाने देना पड़ेगा, टाइम हो गया है. कार्मिक कॉल is here. The sixth card which came up is Four of Cups. There I feel in this relationship was emotional dissatisfaction नीचे नीचे, और because ये ठीक से communicate नहीं हुआ ये बढ़ता गया. Emotionally dissatisfied थे लोग in this relationship. कोई फील किया कि वो इमोशनली इग्नोर हो रहा है बाय देयर पार्टनर, या फिर मिसअंडरस्टूड हो रहा है बार बार. एंड दे ऑल्सो फेल्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे वर इन रिलेशनशिप. फोर ऑफ कप्स बोलता है कि ये जो मोमेंट आया है ना, ये सडनली तो नहीं आया है. ये जो फीलिंग्स तैयार हुआ है ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड, ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, ये बहुत टाइम से पाइल अप होते हुए आ रहा है. बहुत टाइम का क्रिएशन है, सडनली तो नहीं हुआ है. द सेवेंथ कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स. एक पास्ट वुंड, दर्द ट्रिगर हुआ है. ओल्ड मेमोरीज, बचपन का कंडीशनिंग, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है, ठीक है. समवन का इनर चाइल्ड ये रिलेशनशिप में अनसेफ फील हुआ है. कैन बी ऑफ स्मृति, कैन बी ऑफ पलश, नोज. और द वन लिसनिंग टू दिस वीडियो, आप खुद के साथ इसको रिलेट करो. सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो दिखा रहा है पब्लिक नॉस्टैल्जिया को, ठीक है. फैंस अपना इनोसेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनपे. ड्रीमीनेस, फेरी टेल एक्सपेक्टेशंस लाइक विराट कोहली अनुष्का शर्मा मैरिज, ये सब एक्सपेक्टेशंस भी उनपे दबाया गया है ना. एट कार्ड पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस इज द कार्ड ऑफ न्यूज, मैसेजेस, स्पाइंग दिख रहा है मुझे, एंड सडन इंफॉर्मेशन दिख रहा है. ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत रिसेंटली डिस्कवर हो गया है. चल तो बहुत सालों से रहा है या फिर बहुत दिनों से रहा है, हु नोज, बट चल तो रहा था पहले से, लेकिन अभी जाके डिस्कवर हुआ है. एक सच कोई ओवर हियर कर लिया है जो उनको सुनना नहीं चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन को सुन लिए है, पढ़ लिए है, या देख लिए है, या फिर बस सेंस कर लिए है. ये अलर्टनेस को दिखाता है कि किसी का इंट्यूशन सडनली शार्प हो गया है, लाइटनिंग की तरह. एंड दैट हैज रिजल्टेड इन दिस रेवलेशन, इन दिस ब्रेकअप. नाइन्थ कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स. ये तो आना ही था. ये कंफर्म कर रहा है कि एक ऐसा सच था जो छुपाया हुआ था. Not necessarily malicious,
बट डेफिनेटली छुपाया हुआ। शायद ये सच उतना डेंजरस है भी नहीं जितना आप और मैं बैठ के यहाँ पे सोच रहे हैं। मैं तो नहीं सोच रही, खैर आई एम नॉट हियर टू जज, बट गॉसिप्स के थ्रू आ रहा है, या फिर कोई बहुत इंसानों के लिए होता है ना कि सच बहुत मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा सच हो। वो छोटा सच जब तुमको पता लग जाता है कि दूसरा इंसान छुपा के रखा है, इट्स अ ब्रेक ऑफ डील फॉर देम। So even that can be the case. We can't be the judge until and unless they themselves clear it about themselves. But एक सच छुपाया हुआ तो था। Seven of Swords is the card of escape. देखो भाग के जा रहा है ये आदमी, सीक्रेट्स दिख रहा है, बहुत ज्यादा अवॉइडेंस दिख रहा है, डिसऑनेस्टी दिख रहा है, छुपाया हुआ बिहेवियर दिख रहा है। दिस इज द मोमेंट, ये जो मैंने बोला ओवर हियर रेड सेंस्ड, दिस इज द मोमेंट which has changed everything. We are slowly coming to the end of tarot card reading today. This is the Seven of Wands. After the revelation, ये खुलासा होने के बाद एनर्जी जो है बहुत ज्यादा डिफेंसिव बन गया है। लोग अपना ग्राउंड पकड़ के खड़े हो गए हैं, बाउंड्रीज खींचा गया है। दिस इज द आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। एक फाइट फॉर डिग्निटी हो रही है, शायद इसीलिए शी हैज डिलीटेड एवरीथिंग, एवरी पोस्ट, हू नोस, एवरी रील। सो कांस्टेंट फाइट फॉर हर डिग्निटी दिख रहा है, फाइट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, which is very very good for her and for you guys who are trying to do the same thing. We have the 11th card, which is the Devil. This was the karmic root. Attachment issues, temptation, unhealthy cycles, power dynamics, fear of abandonment. Devil कहता है कि ये कनेक्शन का एक कार्मिक वजन था. It needed to break before it became a long टर्म घाव। लॉन्ग टर्म घाव बनने से पहले ही ये टेम्पटेशन, ये नशे को छोड़ने का आवश्यकता था। The last card is Knight of Pentacles and finally Knight of Pentacles दिखा रहा है स्लो स्टेबल हीलिंग हो रही है, एक नया शुरुआत का ग्राउंड बिछाई गई है। इट सेज दैट ये जो फॉल हुआ, ये जो ब्रेकअप हुआ वाज वेरी मच नेसेसरी। ब्रेकअप तो अभी हम श्योरली कुछ नहीं बोल सकते, बट जो कोलैप्स हुआ है ये बहुत नेसेसरी था। दिस रीबिल्ड जो फिर से तैयार होगा विल बी ब्यूटिफुल। द फ्यूचर हैज स्टेबिलिटी नाउ, ना कि सिर्फ chaos. We'll now come to runes reading. I will be referring to the digital runes I have used for this reading. So, the three runes which have come up are Ansus, Nauthis, and Tiwaz. Okay? Ansus, the truth revealed के बारे में बोलता है। Ansus दिखा रहा है words, messages, communication। ये रून कंफर्म करता है कि एक सच्चाई, एक नहीं सच्चाई डिवाइनली अपने टाइम के अनुसार बाहर आई है। अ मैसेज, एक कॉन्वर्जेशन या फिर एक कन्फेशन हुई है, हैज प्लेड अ बिग रोल। नॉर्थ ईस्ट जो है रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी को स्लैश प्रेशर को, ठीक है। दिस ब्रेकअप was a necessity. The universe pressed brakes. ये जो कस के जो ब्रेक मारा है because someone in the relationship was going down the wrong path, है ना। एंड नॉर्थ ईस्ट कहता है अभी का दर्द कल का डिजास्टर को रोकेगा। अभी का दर्द अगर तुम नहीं सहे तो कल डिजास्टर होगा ही। तो कल का डिजास्टर रोकने के लिए टेम्पररी हार्ट ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। The third card, sorry, the third rune is Tivas, which is justice, honor, right? Integrity. This is the rune of righteousness, of doing the right thing, even when it hurts. We all know that Smriti did not do it in clear head. She did not do it because she wanted to. She did it because maybe she thought it was necessary. And the rune shows that बहुत खुश होके तो नहीं किए, it has hurt her and still she decided to do it because that was the right thing. And many a times सही चीज करने के लिए बहुत guts चाहिए and heartbreak लेने का क्षमता चाहिए, and she is protecting her own destiny. ये रूम कहता है your future deserves integrity. This ending जो हुआ है is sacred protection. अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक नया डिविनेशन टूल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, which is I Ching divination.
And the one reading which I'll give you all from I Ching is hexagram 14 उठ के आया है, which is the symbol of great possession. This hexagram जो उठ के आया है number 14 is extremely auspicious. ठीक है, ये बोलता है when you lose something temporary you gain something extraordinary. ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, गुड फॉर्चून को, फ्यूचर सक्सेस को, इमोशनल वेल्थ को, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को, डिवाइन टाइमिंग को. सो हेक्साग्राम 14 ये कंफर्म करती है कि ये जो मोमेंट था, आई नो इट वाज पेनफुल बट इट वाज अ टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स अ ग्रेटर डेस्टिनी. I'll give you all some practical according again like soul code spiritual tools to protect your energy, your aura. जो लोग भी मेरी वीडियो अभी देख रहे हो आपके बारे में ही ये रीडिंग था. Whether you are Smriti Mandana or you are someone suffering quietly opposite, I mean on the other side of the screen, practice this, okay? It's going to help you. Okay. So the first thing which I'll tell you is the Nazar release palm ritual. So you have to take your palms, rub them for 9 seconds. Okay? And place them on your face. मैं भी चश्मा पहन के हूँ, नहीं दिखा पा रही हूँ. Just place them on your face. पूरा palm को face करना, आँख बंद करके बोलना, what is not mine dissolves in light. What is not mine dissolves in light. ओके ये आपका ऑरा को रिसेट कर देता है, स्पेशली आफ्टर पब्लिक अटेंशन. आप बाहर गए हो, लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, या फिर आप और आपका पार्टनर गए हो, लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए हैं. एनी सिचुएशन, कम होम, यू एंड योर पार्टनर बोथ डू इट. ओके. The second is the warm water heart cleanse, anahata cleanse. So after कोई झगड़े या after कुछ emotional shock, take some lukewarm water in a कांच का glass and drink slowly, sip slowly with the mantra, my heart is protected, my path is guided. Again, my heart, sip करते करते, my heart is protected, my path is guided. This ये रिचुअल आपका नर्वस सिस्टम को ना स्टेबलाइज कर देगी. एंड थर्ड इज द मिरर रिचुअल. ओके, द मिरर शील्ड. स्पेशली अगर आप कोई पब्लिक पोस्ट में हो, पब्लिक फिगर हो, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर आप पे अटेंशन आने का ज्यादा चांस हो जाता है हर बार. सो बिफोर स्टेपिंग इनटू पब्लिक आई, या फिर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, या फिर इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस बहुत ज्यादा डालते हो, पोस्ट करने से पहले एक आईना लो. आईना नहीं मिला तो नॉर्मल फोन लो, ठीक है, ऑफ करके फोन का स्क्रीन लो एंड से ओनली ट्रूथ रिफ्लेक्ट्स, ओनली ब्लेसिंग्स एंटर. ओके, ये एक ऑरा बाउंड्री क्रिएट करता है. And lastly, sometimes universe removed people you prayed for because he heard conversations you did not. This is not destruction, this is redirection. If your heart resonates with this reading, type I choose a divine protection in the comments. Your path is guided, your energy is sacred, and your destiny is bigger than what you just lost. And for customized personal reading, I will drop my contacts in the description box below. Thank you, and this is Soul Codes.